Hi everyone, thanks for joining in. We'll be starting the webinar in next 5 to 6 minutes. Thank you for your patience. Hello everyone, good afternoon, and welcome to this live webinar. I think we can wait for another minute before we get started, and we'll just give everyone some more time to join in.
Thank you for your patience. Awesome. All right. So again, welcome everyone to this live webinar on how to build super fast news websites in 2024. In this webinar, we are going to explain and give you a live walkthrough of all the must-have optimizations, plugins, and hosting configurations you need to build fast, reliable, and secure WordPress news websites that can scale to millions of visitors in the future. My name is Shantanu. This webinar is powered by CloudFant, and CloudFant is the perfect platform for you if you're looking to host your WordPress website directly on your own cloud. It manages all the technical hassles, gives you a simple way to launch, optimize, and secure and scale blazing fast WordPress websites on your preferred cloud, be it DigitalOcean, AWS, Google Cloud, or any local provider you're working with. We also have Kshitij with us. Kshitij, maybe we can switch over to the next slide. Right. So as I was talking about CloudFant, this platform helps you launch your WordPress websites on your preferred cloud. And that is something that we recommend. But in this website, I also want to begin by, like I said, introducing today's presenter. That is Kshitij Kumar. Kshitij, maybe we can again move to the next slide. Kshitij is a software engineering leader with over 14 years of experience at building and optimizing WordPress websites for large enterprises and startups with millions of concurrent users. Some organizations that he has worked with include the Government of India, Money Control, the financial website, Byju's, the edtech company, and more. And today he's going to give us, he's going to be the one who will walk us through how he configures all levels of optimizations on his WordPress websites. Before we begin the session, I would like to request everyone to add your questions to the Q&A tab you might be seeing on your screen. We'll cover all the questions towards the end. Kshitij, please take it away. Hello, everyone. So as Shantanu mentioned, that I have experience of around 10 plus years in around WordPress. And during that period, actually, I've worked on multiple WordPress websites, dealing either in news, blogging, portfolio management for companies, or e-commerce. And during that period only, actually, I have my own blogs as well. And during those period only, actually, I have worked on a lot of optimizations, worked around a lot of solutions. And so whatever I've learned during this period, basically, I will be sharing all those details with you guys. I'll try to be like as concise as possible, and we have like time box to 90 minutes. So I'll try to cover most of the things in those 90 minutes. So I'll start with like basic thing about first the state of WordPress. What exactly is WordPress and what's the current market size? And so we all know that WordPress is the leading CMS right now in the market. And as of 2024, it has over 835 million websites globally, and 500 WordPress websites are created and published on daily basis. So if you see, there are multiple CMS, but nothing comes closer to WordPress when we talk about CMS, because it's very simple to use, quite code actually, and it has a lot of flexibility as well for developers also, as well as users as well. So, and yeah, and like since the WordPress is the biggest website, so users include Government of India, government, actually all around the world, government uses WordPress mostly, and then Sony Music, Vogue Magazine, Book My Show. These are some examples, but we know that a lot of big companies, they use WordPress as their primary blogging source or blogging website for that matter. And when you talk about website performance, so we have to keep few things in mind. So that starts with the user experience, which Google emphasizes a lot, right? And that's where we have page speed and all those things. So Google ranks websites based on user experience mostly. If somebody is opening the website, that should open quickly. It should have interactive elements properly placed, and
users should be able to like use the website as soon as possible. Otherwise, they will bounce, and if they don't understand the website as well, they will bounce. So if users have good experience, eventually those websites gets pushed higher in SEO and ranking. Of course, we have to do SEO and ranking, SEO stuffs and keywords and all those things. They are definitely there, but ultimately most of the things lie down to user experience, which gives most boost to SEO. And then later on, of course, conversion and monetization, for which we are running e-commerce or blogging website. So basically, like for user experience, one of the most important thing is theme. I think this is the most important. Quite frankly, I mean, hosting and optimization, they're fine. But if your theme is really good, most of the time you don't have to worry about hosting optimization as well. So make sure that whenever you choose a theme, you choose one of the best theme. There should be already performance optimized. If you have that, so 90%, not exactly 90%, but 50-60% of your problem is already solved. So some themes are like GeneratePress, Astra, newspaper theme, which I personally use as well. These are quite fast. They are like developed quite nicely. They are already optimized in most sense. Thing is hosting. Once you have theme, you'll have to host your WordPress. So for hosting, you should, if you are planning to scale, which you would definitely want, so you should probably choose a host which has good track record, or the host which can give you flexibility as well when your website grows. And for me personally, and I think most of the people who have been in industry for a long time, they have moved to cloud hosting. Most of the user now, they prefer to use their own cloud hosting now, because it gives you more flexibility and you can change things according to your requirements. In shared hosting or other kind of VPS, they have very limited access to resources and everything, which is not good for scale. So for hosting, I would also recommend to use your own cloud. And lastly, we have optimizations on which we'll be looking into. Like once we have we have posted it somewhere, then we'll have to add optimizations around, so that our website can work properly, backend optimization, front-end optimizations, and there are other kind of things as well. So we'll basically cover that only in this webinar. So I'll go ahead and start with the optimizations. What I'll do, I will minimize this. I'll use this, right? So basically, we'll start with this front-end optimization first. So we have 4 kind of optimizations: front-end optimizations, caching, image optimizations, and backend optimizations. There can be a lot of other kind of optimizations as well, but we are covering the major parts, which we should definitely do. So I'll cover the other parts as well later on if we get some time. So in the first section, we have front-end optimization. In front-end optimization, we'll cover 2 things. First is minification. Second is async defer.js. I'll explain what exactly it says. So when we talk about front-end optimization, front-end optimization basically is like what we are seeing on the browser. What we are getting on the browser should be able to handle that properly, right? So whenever we are sending a request, browsers mostly sends us CSS file, JS. First thing is actually HTML document itself, then CSS, then JS, and then fonts, and there are some other kind of things as well, which is sent to browser. The browser renders that, and based on that rendering, you see that page that we see on the browser. So we need to make sure that whatever we are sending to the browser, it is optimized so the browser can work properly and create fast, or like render websites fast, or it can show content, which is most important first. Then later on, we can load other things later on, which are not critical for better user experience. So the first part is minification. Minification is very straightforward thing. Minification is like whenever we have CSS and JS or HTML that we are sending to the browser, usually the code looks something like this. We have a lot of blank spaces. We have a lot of tabs and everything. So tabs, blank spaces, those are actually bytes, right? So they take extra space. So minification means like just removing these extra spaces and tabs and make it look something like this, so that we don't have extra tabs and spaces. The file size gets reduced. So like when we have to send this file from backend from our server, this file size will be less. So it will give us more bandwidth actually for extra other users as well. So overall server load will get reduced.
Similarly, we have async defer JS. Async defer JS is something that we use when we, so in JavaScript, right? So whenever we load a website, we have CSS and JavaScript, which like builds the page over HTML skeleton, basically whatever HTML tags we have. CSS is the part which does designing, while JavaScript the part which is like for dynamic things, animations and all those things. So in most cases, JavaScript is not required initially. In good themes, you will not see actually JavaScript getting loaded initially. It shouldn't. So to handle like those things in our scenario, like JavaScript shouldn't block a UI loading, we have two options, async and defer. Async is like whenever we have HTML document that we have to render, whenever we see script tag, JavaScript tag, in async, what happens? It fetches as it is parsing. It can fetch multiple JavaScript with async tag together, and then once it is fetched, then it will start executing. So it kind of does this parallelly. While in defer, which I prefer mostly over async, it gets fetched, but execution happens only when HTML parsing is done. So in most scenarios, actually, this should be the case. We should defer most of the JS files. If it's not possible, then only we should start using async. So what I'll do, I will just give a quick demo of both of these things. So I have this website. I have this staging website with me, and this is staging of my live website. Basically, I have added a new theme on this. So staging.adamstock.com. So for minification and async defer, I will use one plugin which is called Auto Optimize, and I have already installed this plugin. So I'll just go ahead and activate this. Okay, this is active. I'll go to settings. And what I'll do is I'll open just this blog, and I open one incognito tab as well, just to make sure that we can see those things clearly. Okay. So what I'll do, I'll just load this page. So when I loaded this page, the first thing is HTML doc. You can see in the response, we have multiple lines coming here. And you can see the line number on the left side. We have all the line numbers here. Similarly, if I open CSS, CSS didn't get fetched. It is strange. Right. So I'll sort by size. You can see this is coming from Google API. Similarly, in CSS also, we have multiple lines coming here. Similarly, in JS also, we'll have similar thing only. Swiper bundle, we have multiple lines. So what I'll do, we are getting these three documents. What I'll do, I'll just minimize these files. And let's see what difference it brings in. So we have already turned on Auto Optimize JS. So we have optimized JavaScript code. I will just disable this for now. And so this will start minification. We have optimized CSS code. It is checked on. This will take care of CSS minification. Then we have optimized HTML code checked in. So this will take care of HTML minification. And we are also minifying inline JS and CSS. Inline JS, CSS, basically, whatever code we see in HTML, like this script, it is coming in HTML. So this is called inline. So we have all these things set up. I'll keep this thing like this. What I'll do, I'll just click on changes in empty cache. Right. So we have added this. I'll just go ahead and clean the cache created before. And I'll go ahead and open this now again. So this page, now we have added all those minification optimizations. Now I'll open this HTML body. Now you'll see that whatever extra lines we had,
they are gone. We don't have those extra lines here. In style also we had those extra lines. If you see here, you can see we have all these lines, these extra lines coming in. Similarly for style also we have these extra lines coming. But if I open the same thing here, you'll see those extra lines on one. So this is inline CS. We had checked that for HTML, those extra lines are not here. And overall, if we see there, we have just 14 lines for HTML. And similarly, in this we had around 1156. So it's a huge change when you talk about the number of lines. And if we look at size as well, here we had 21 KB and here we have 19.9 KB. So it's around, like, usually the difference is between 8 to 20%. We cannot compress. If the theme is well coded, it can even be less than that. So here I think it's around like 7 to 8% only. So similarly for this as well, for CSS as well, I'll open this here and sort by size again. So this is the largest file, 23.3 KB. Okay, I think people are requesting to mix language. So what I'll do, I'll switch to English and Hindi both then. Fine. तो मैं switch कर लेता हूँ फिर mix करके मैं बोल दूँगा. तो basically अब हम CSS पे आते हैं. तो CSS में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं वो यहाँ पे ट्रिम हो गया ऑप्टिमाइजेशन के बाद. And we have just 7 lines here. Similarly, if I go back here, if I open CSS, the largest file was this bootstrap CSS actually. ये वही फाइल जो हम देखे थे जिसमें 7 lines थी. Actual CSS में ये around 10,000 lines हैं. तो हमारा मिनिफिकेशन हो गया और हमारी सारी लाइन्स रिड्यूस है. तो इसमें रिडक्शन जो है 25.8 KB से 3.3 KB, ये भी अराउंड 10% रिडक्शन है. सिमिलरली जीएस में भी सेम चीज रहेगा. आपको ये 44.9 KB की फाइल है. इसमें भी कुछ एक 700 समथिंग लाइन्स हैं और ओरिजिनल सोर्स में जब जाके देखेंगे तो इसमें हमें 57, इसमें रिडक्शन भी ज़्यादा है. इसमें 20% के अराउंड रिडक्शन और इसमें कुछ 10,000 9,500 के अराउंड फाइल्स हैं. तो मिनिफिकेशन का ये फायदा होता है कि हमारा ओवरऑल साइज कम हो जाता है और प्लस हमारा कोड भी श्रिंक कर जाता है, नंबर ऑफ लाइन्स हट जाती हैं. और आपको मैं दिखाता हूँ मिनिफिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है. जब इसको ओपन करता हूँ मैं नए टैब में, ओपन इन न्यू टैब, तो कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखेगा, सब कुछ एक साथ मिंगल दिखेगा. जबकि मैं सेम चीज को जब यहाँ पे ओपन करूंगा तो यहाँ पे आपको ये क्लीन कोड, ऐसा एक्सपेंडेड कोड दिखेगा. तो ये मिनिफिकेशन का डिफरेंस होता है. 10% रिडक्शन मीन्स 10% मोर विजिटर्स. सर्वर 10% ज़्यादा लोड ले सकता है. तो इसलिए 10% 15% एक बड़े स्केल पे बहुत मैटर कर जाता है. और जब धीरे धीरे हम लोग ऐड करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा स्केल हो जाता है. अब नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम मूव करेंगे वो है, तो ये मिनिफिकेशन वाला हमने कंप्लीट किया. मैंने मिनिफिकेशन को, ठीक है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ. नेक्स्ट चीज हमने देखा था एसिंक डिफर. तो एसिंक डिफर के लिए इस पे हम एक्स्ट्रा पे जाएंगे और मैं मे बी मिनिफिकेशन अभी बंद कर देता हूँ. एक्स्ट्रा में जाके अब मैं एसिंक डिफर इसमें ऑटो ऑप्टिमाइज में ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है एसिंक जावास्क्रिप्ट फाइल. आप एक्स्ट्रा में जाएंगे और एक्स्ट्रा में ये ऑप्शन आपको दिखेगा और इसमें आप जाके जो भी फाइल आपको एसिंक में डालनी है, जैसे jQuery min.cs है या navigation.jsp इसमें, तो मैंने इन दोनों फाइल को एसिंक्रोनस कर दिया. इसको मैं सेव करता हूँ. राइट. और एक चीज़ और है, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट फाइल डाला है, केवल मैं ये ऑप्टिमाइजेशन को चेक करता हूँ जावास्क्रिप्ट का, ताकि जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन रन करे. और इसको हटा दिए.
अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से अभी मैं एक डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल, मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ, इसमें सोर्स कोड दिखता है, तो मैं इसको कंट्रोल एफ करता हूँ, jQuery डॉट min डॉट js। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट फाइल डायरेक्टली इंटैक्ट है, यहाँ पे एसिंक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें जब भी यूजर ये पेज रेंडर होगा HTML का ब्राउजर पे, ये ब्लॉकिंग रहेगा। ब्लॉकिंग मीन्स इसका जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक रिक्वेस्ट नेक्स्ट पे नहीं जाएगी। ये प्रॉब्लम होता है ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट के साथ। यही हम लोग देखते हैं रेंडर ब्लॉकिंग, जब हम पेज स्पीड में देखते हैं। रेंडर ब्लॉकिंग मीन्स ये नेक्स्ट पे जब तक नहीं जाएगा तब तक ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे जाते हैं, अब हमने ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर दिया कि वो एसिंक रन करे, मतलब पैरेललाइज हो, उसको ब्लॉक ना करे। तो उसमें डिफरेंस जो आएगा, फिर मैं कंट्रोल यू करता हूँ, कंट्रोल एफ, jQuery.min.js। इसमें आप देखेंगे अब ये एसिंक टैग ऐड हो गया। एसिंक टैग का मतलब हुआ जब भी ब्राउजर इस पे रेंडर करने पे आएगा, ये यहाँ पे इसको ब्लॉक नहीं करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा और फिर इसको फेच करना चालू करेगा, और ये पैरेलली एक दूसरे थ्रेड में या दूसरे वर्कर में एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये नॉन ब्लॉकिंग हो गया हमारे लिए। तो बेटर रहता है कि हमें क्यों ब्लॉक करना है यूआई रिसोर्स को, और खासकर जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट यूआई में उतना इन जनरल पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो CSS और HTML जनरली रहता है। तो एसिंक वहाँ पे काम आता है। सिमिलरली आप नेविगेशन डॉट जेएस को देखेंगे जिसमें एसिंक है, ये भी एसिंक हो गया। यहाँ पे एसिंक है, ये पैरेलल चला गया, फिर यहाँ पे आया ये एसिंक नहीं है, फिर यहाँ ब्लॉकिंग हो जाएगा, फिर ब्लॉकिंग के बाद फिर यहाँ आएगा एसिंक है, फिर ये आपका पैरेललाइज हो जाएगा। ऐसे करके आपका ये ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग, अगर मैं सब में एसिंक कर दिया तो ये सब पैरेललाइज हो जाएंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स अपना एग्जीक्यूट करते रहेंगे जावास्क्रिप्ट को। जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो पेज में मर्ज कर देंगे। तो इसलिए एसिंक इंपॉर्टेंट होता है। डिफर, अब हम आते हैं डिफर पे। डिफर के लिए भी ऑटो ऑप्टिमाइज में ही सेटिंग है। मैं एसिंक को हटा देता हूँ या फिर एसिंक को रखते हैं, जस्ट फॉर सी कंपैरिजन के लिए कुछ रहेगा। ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट कोड में वी हैव दिस ऑप्शन, डू नॉट एग्रीगेट बट डिफर। एग्रीगेट इज ऑल्सो वन ऑप्शन, लेकिन एग्रीगेट यूजफुल था पहले जब हम HTTP 1 यूज करते थे। करंट टाइम टेक्नोलॉजी HTTP 2 HTTP 3 चली गई है, जिसमें एग्रीगेशन का कोई फायदा नहीं, ये उल्टा अभी नुकसान कर देता है वेबसाइट को। तो बेटर है कि एग्रीगेट मोस्ट केसेस में हम यूज ना करें। अब हम यहाँ पे आएंगे, डू नॉट एग्रीगेट बट डिफर। मैंने इसको चेक किया, ऑल्सो डिफर, इसको अभी एक्सक्लूड करते हैं। सेव चेंजेस, मैंने फिर से कैश क्लियर किया। अब क्या होगा, सारी JS फाइल्स एक्सेप्ट डॉट एसिंक फाइल डिफर होंगे। डिफर मतलब वो फेच होंगी लेकिन एग्जीक्यूट तब होंगे जब पेज पूरा रेंडर हो जाएगा। तो उसका मैं आपको एक यहाँ पे वापस से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। राइट, अब आप देखेंगे यहाँ पे डिफर ऐड हो गया। उन दोनों में अभी भी एसिंक है, इसमें डिफर है। अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, एसिंक आपका पैरेलल में एग्जीक्यूट होता रहेगा लेकिन डिफर वाला एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ये केवल फेच होके साइड में हो जाएगा। जब ये पूरा पेज रेंडर कर जाएगा, जब ये पूरा पेज रेंडर कर देगा, तब जो भी हमारे डिफर है जावास्क्रिप्ट, ये लास्ट में भी है, तब ये एक एक करके वो डिफर वाले रेंडर करना चालू करेंगे। ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि इसमें हमारा ब्राउजर का और रिसोर्स कम होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन चलता है, यहाँ एग्जीक्यूशन भी नहीं चलता है। हमारा वेबसाइट लोड हो गया, उसके बाद जावास्क्रिप्ट अपना लोड होता रहेगा। जो भी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आप रन करते हैं वर्कर्स के लिए या फिर एड्स के लिए, उनको आप मे भी डिफर कर सकते हैं कि वो ब्लॉक ना करें नीचे, पहले यूआई यूजर का लोड हो जाए। तो एक चीज ये हो गया। तो बेसिकली फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन में हमारा ये पोर्शन है। अगर लास्ट में थोड़ा टाइम मिलता है मैं कुछ मे बी इसके अराउंड डेमो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा अभी टाइम बॉक्स 90 मिनट्स है, सो मैं नेक्स्ट पार्ट में मूव करता हूँ अभी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये हो गया फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन हमारा। सेकेंड, राइट। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कैशिंग। कैशिंग इज बेसिकली लाइक, जब भी हम रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे या कोई भी वेब पेज लोड कर रहे हैं, तो वो वेब पेज सर्वर प्रोसेस करके भेज रहा है हमें। हर बार हम सेम रिक्वेस्ट भेज रहे, हर बार
वर्डप्रेस सर्वर उसको भेज रहा है, तो सर्वर पे हमारा एक्स्ट्रा लोड है। अब हमने जैसे यहाँ पे पेज लोड जब किया, इस पेज लोड को करने में हमने काफ़ी रिसोर्सेज कॉल किए, राइट। टोटल 46 रिक्वेस्ट कहीं आप देख सकते हैं, इतने सारे जेएस कॉल किए, इतने सारे सीएसएस कॉल किए, और बार बार एक ही पेज को हम, मान लीजिए कोई यूजर है 3-4 ब्लॉक पेज करता है, हम बार बार इसको क्यों कॉल कर रहे हैं। तो उसके लिए हम कैशिंग यूज करते हैं कि कैशिंग क्या करेगा कि ये स्टैटिक रिसोर्सेज, राइट, ये चेंज नहीं हो रहे हैं, सीएसएस चेंज नहीं हो, जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट चेंज होता है इन जनरल, लेकिन न्यूज में ये भी चेंज नहीं होता है इन जनरल, तो ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए हम कैशिंग करते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं जो चेंज नहीं हो रहे उनको कैश करके यूजर की लोकेशन पे ही डाल दो, कि जब यूजर सेकंड टाइम उसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो सेकंड टाइम एक्सेस करने में उसको वहीं से मिल जाए, पास से ही रिसोर्स मिल जाए। उसमें एक फर्स्ट थिंग होती है ब्राउजर कैशिंग। ब्राउजर कैशिंग में आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। अभी मैंने डिसेबल कैश किया है, मैं इसको रिक्वेस्ट करूँगा तो आपको दिखेगा ये, मैं कोई भी जे क्वेरी ओपन करता हूँ, जैसे ये इसने मेरे सर्वर को कॉल किया और सर्वर ने मेरे 200 ओके और ये डॉक्यूमेंट भेज दिया रिस्पॉन्स में। अब मुझे चाहिए कि ये यूजर दूसरा पेज ओपन करता है, कि दूसरा ब्लॉग ओपन करेगा। मैं इस ब्लॉग को ओपन किया, उसमें भी सब चीज़ें सेम ही कॉल होंगी ऑलमोस्ट। ये वाला फिर से कॉल हो गया और फिर से सर्वर ने मेरे भेजा। तो इस केस में क्या होता है, जो स्टैटिक रिसोर्स होते हैं ना, एक ब्राउजर कैशिंग का ऑप्शन आता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे स्टैटिक हैं उसको ब्राउजर पे कैश कर लो। तो मैं डिसेबल कैश करता हूँ और मेरे इस सर्वर पे एक्चुअली में ऑलरेडी एडेड है वो कैश। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे एडेड है, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आप देखोगे ये आपको आ रहा है मेमोरी कैश, ये आपको मेमोरी कैश से आ रहा है 200 ओके। ये मेरे मेन सर्वर पे नहीं गया क्योंकि हमने ब्राउजर कैशिंग ऑन किया था, और ब्राउजर कैशिंग ऑन में आपको टैग्स जो होते हैं इन जनरल ई टैग और एक्सपायर्स, मोस्टली हम लोग एक्सपायर्स यूज करते हैं। आप देखोगे ये कैश जो है 20 अप्रैल 2024 तक के लिए ये ब्राउजर में सेव हो गया है। अब जब भी इस यूआरएल को मैं कॉल करूंगा, ये हमेशा इस ब्राउजर के कैश से ही आएगा, ये ब्राउजर में कैश हो गया इतने टाइम तक। जब 21 अप्रैल ये जब ये टाइम ओवर करेगा तभी ये ब्राउजर नए फाइल के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो इसमें कितना अच्छा हो गया कि हमारी ऑलमोस्ट 47 रिक्वेस्ट जैसे गई हैं, 47 में कुछ नहीं तो 40 रिक्वेस्ट एटलीस्ट हमारे ब्राउजर में कैश हो गई हैं, जो कि बैंडविड्थ के टर्म में आप देखोगे तो काफी ज्यादा हो जाता है। आप बैंडविड्थ के टर्म में यहाँ पे 22 केबी से यहाँ पे लिखा है, केवल 22 केबी ट्रांसफर हुआ, लेकिन आप जब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे ये ओवरऑल आपको हो सकता है 60-70 केबी है, इवन ज्यादा भी हो सकता है, 100 केबी है। अब 100 केबी का रिसोर्स हर बार सेव हो रहा है जब भी हम ब्राउजर कैश या यूजर सेम वेबसाइट पे दूसरा पेज खोल रहा है, क्योंकि हम ब्राउजर से कैश को भेज दे रहे हैं। तो ये ब्राउजर कैश का एडवांटेज होता है। और ब्राउजर कैश यूजर के सबसे क्लोजेस्ट होता है, तो सबसे फास्ट भी होता है, क्योंकि लिटरली ब्राउजर से आना है तो वेबसाइट का परफॉर्मेंस और बेटर हो जाता है। जनरली ब्राउजर कैश हम 1 मंथ रखते हैं। तो ब्राउजर कैश जनरली सर्वर पे इंप्लीमेंट होता है, और सर्वर जैसे हम nginx यूज करें तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। मेरे nginx कैश का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पड़ा है, उसको मैं ओपन करूँगा तो इसमें आपको दिखेगा जितनी भी फाइल्स हैं OGG, OGV, SVG, जो स्टैटिक फाइल्स रहती हैं, MP4 वीडियो, JS, JPG, इवन इमेज के लिए भी, इमेज मैंने आपको दिखानी, इमेज में भी सेम चीज़ है, और PNG, JF, तो जितनी भी आपको यहाँ पे स्टैटिक फाइल दिख रही हैं, इवन CSS, हाँ CSS भी, तो ये सब जो है 1 मंथ के लिए कैश हो जाएगा मेरे ब्राउजर में। आज 21 है, आपको 20 अप्रैल दिख रहा था क्योंकि वो 1 मंथ बाद एग्जैक्टली है। तो सारे कैश 1 मंथ के लिए मेरे ब्राउजर में कैश हो जा रहे हैं, और हम ये हेडर उसमें ऐड होता है। खास बात इसमें एक और पॉइंट है मैं शेयर करना चाहूँगा, ये केवल हमारे ब्राउजर में कैश नहीं होता है, जिसको हम पब्लिक करते हैं, तो जैसे कि मैं वेबसाइट यूज कर रहा हूँ तो बहुत सारे बीच में नेटवर्क है, राउटर्स हैं, इवन ये फाइल्स उन राउटर्स में भी कैश हो जाती हैं सेम पीरियड के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे ब्राउजर से अगर कैश क्लियर भी हो गया, अगर कोई और यूजर एक्सेस करना चाह रहा है उस फाइल को, तो इंटरमीडिएट प्रॉक्सीज जो हैं वो भी उसको कैश कर लेती हैं, तो वहाँ से भी हमको बहुत फास्ट मिल जाता है ये चीज़। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा ओवरऑल बैंडविड्थ बचाने के लिए, स्पीड इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट थिंग CDN है। तो CDN के लिए, CDN पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ CDN है क्या। CDN इज बेसिकली जब भी हम स्टैटिक रिसोर्स, अगेन स्टैटिक रिसोर्स यूज करते हैं तो वो चेंज नहीं होने हैं। अभी आपने जो कैश किया ब्राउजर पे किया,
और मेन सर्वर पे बाकी आपकी फाइल्स तो पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको क्या स्टैटिक फाइल्स आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका मेन सर्वर जैसे इंडिया में है और यूएस का कोई यूज़ करना चाहे, क्योंकि अब मेन सर्वर वो इंडिया में आएगा तो रिक्वेस्ट विल बी वेरी स्लो, क्योंकि नेटवर्क हॉप्स, नेटवर्क लेटेंसी वहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो स्टैटिक रिसोर्स है आप किसी तरह से यूएस वाले के पास कॉपी कर दो, ताकि यूएस वाला जब एक्सेस करे तो यूएस वाले के लिए पास से ही वो फाइल वो फेच कर सके। तो उसमें क्या होगा कि यूएस वाले के लिए वो स्टैटिक फाइल्स की लेटेंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली यूरोप वाले के लिए यूरोप में कॉपी कर दिया, एशिया में और भी लोकेशन से वहाँ पे कॉपी कर दिया, अफ्रीका में कॉपी कर दिया। तो सिमिलरली हमने स्टैटिक फाइल्स को उनकी आसपास के लोकेशन में कॉपी कर दिया, तो उनका रिट्रीवल स्पीड है वो बढ़ जाएगा, लेटेंसी। इसी को सीडीएन बोलते हैं। सीडीएन एग्जैक्टली ये करता है कि जो भी स्टैटिक रिसोर्सेज होते हैं, it copies all those static resources in multiple data centers in multiple locations of the world. तो उसमें क्या होगा, वही कि जैसे यूजर जिस भी एरिया में यूज करना चाह रहे हैं उसको वहीं से इसको रिसोर्स मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसका एक डेमो आपको दे देता हूँ। डेमो के लिए मैंने एक प्लगइन ऑलरेडी ऐड किया हुआ, जेट पैक। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑटो ऑप्टिमाइज को जस्ट डीएक्टिवेट, राइट। मैं ओके, ओके मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्टेड है, ठीक है। तो जेट पैक क्या है, जेट पैक की बेस्ट पार्ट है, ये फ्री है, और फ्री होने की वजह से आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपका सीडीएन फ्री में चालू हो जाएगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। अच्छा, कनेक्ट, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है जेटपैक पे, वर्डप्रेस पे, मैंने इसको अप्रूव किया। मेरा जेटपैक कनेक्ट हो गया। मैं वापस से स्टेजिंग एडमिन पे चला जाता हूँ। यहाँ मुझे जेटपैक दिख रहा है, माई जेटपैक पे गया है। डैशबोर्ड में भी सेटिंग्स, अब आपको सीडीएन इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाना है। परफॉर्मेंस में आपको दिखेगा परफॉर्मेंस एंड स्पीड, इसको आप टर्न ऑन कर दो। साइट एक्सलेटर, और ये अपने आप सेव हो गया, आपका सीडीएन चालू हो गया है। अब सीडीएन कैसा दिखेगा उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार, और इमेज में सबसे अच्छे से दिखेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको दिखेगा कि जितनी भी फाइल्स हमारी आ रही हैं इमेजेस की, जैसे कि मे बी नीचे से मैं कुछ बुक करता हूँ, आर्किमिडीज क्रू, आर्किमिडीज क्रू, राइट। तो ये वाला फाइल जैसे हमारे वेबसाइट पे लोड हुआ, इसके लिए आप डोमेन देखेंगे, यूआरएल अभी io.wp.com है। ये स्टेजिंग डॉट एटम स्टॉक नहीं रहा अभी, क्योंकि ये सीडीएन से आ रहा है और ये फ्री सीडीएन प्रोवाइड करता है जेट पैक। तो इसमें क्या होगा कि अब यूजर, ये सारी जो ये इमेज है बेसिकली, ये हर एक डेटा सेंटर पे जेट पैक की कॉपी हो गई है। तो जिस भी लोकेशन से हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे वहां से हमें ये स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, और सीडीएन का इफेक्ट चेक करने के लिए आप एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ये टाइम टू फर्स्ट बाइट, आप
जब भी मेजर करना होता है ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, स्पीड वाइटल्स। इसमें आपको दिख जाएगा रिस्पॉन्स टाइम जो भी है वो कितना है अलग अलग लोकेशंस पे। तो मैंने इस इमेज को कॉपी किया, मैंने इसको रन किया, कैश हिट नहीं है, मतलब ये इमेज अभी कॉपी नहीं हुआ है। इसको रन करने देते हैं। मैं क्या करूँगा, थोड़ी देर और वेट करके एक बार वापस से इसको रन करते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि ये यूरोप हो, यूरोप में 40 मिली सेकेंड, 120 ज़्यादा तो 120 मिली सेकेंड है, लेकिन 40s में अराउंड में ये इमेज जो हमने आ रही है अभी वर्डप्रेस की, यूरोप में 40 मिली सेकेंड के अराउंड है। सिमिलरली अमेरिका में भी ऑलमोस्ट सेम लेटेंसी है। सिमिलरली एशिया पैसिफिक में इवन बेटर है कई जगह पे, लेकिन ऑलमोस्ट सेम लेटेंसी है। तब इमेज की लोकेशन से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि इमेज कहाँ से आ रही है, इमेज का हर जगह सेम बैंडविड्थ है। इसी को मैं ओरिजिनल इमेज पे आ जाता हूँ। ओरिजिनल इमेज के लिए मुझे बस ये हटाना है। मैं इसको रन करता हूँ। ओरिजिनल इमेज जो हमारी थी, इसका डेटा सेंटर है इंडिया, बैंगलोर। जब ओरिजिनल इमेज का भी डाला तो उसमें आप देख सकते हैं यूरोप में ज़्यादा लेटेंसी क्योंकि सर्वर इंडिया में है, अमेरिका में ज़्यादा लेटेंसी अगेन सर्वर इंडिया में। लेकिन जब इंडिया में आएंगे आप या एशिया में आएंगे तो थोड़ा बेटर लेटेंसी है क्योंकि सर्वर अगेन इंडिया में है, तो एशिया के क्लोज में है। तो यहाँ पे सीडीएन का उतना इम्पैक्ट नहीं है। अगेन थोड़ा डिस्टेंस पे जाएंगे, साउथ अफ्रीका चले गए तो वहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के हिसाब से आपको देखिएगा इंडिया में काफ़ी फास्ट रहेगा इन जनरल। तो सीडीएन का ये बेनिफिट रहता है कि आपका जो स्टार्टिंग में आपने देखा कि सब जगह ऑलमोस्ट सेम स्पीड है, वाइल विदाउट सीडीएन दूसरे लोकेशन पे ये चीज स्लो जाती है। तो इसलिए हमें सीडीएन हमेशा यूज करना चाहिए स्टैटिक रिसोर्सेज में, चाहे वो CSS हो, JS हो या इमेज हो। यहाँ मैंने इमेज का एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली आप CSS में भी देखेंगे ये जेट पैक का URL ऐड हो गया, अर्लियर ये हमारे सर्वर से आ रहा था। और सीडीएन के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यू कैन यूज क्लाउडफ्लेयर और क्विक क्लाउड, these two options, and Cloudflare is actually much better than quick cloud. Cloudflare के Cloudflare CDN, Cloudflare का ग्लोबल नेटवर्क काफी बड़ा है एक्चुअल में, सीडीएन का क्विक क्लाउड का काफी कम है, इसका हाफ भी नहीं है। तो मैं जनरली सजेस्ट कर रहा हूँ Cloudflare, ये फ्री भी है सीडीएन, तो मोस्ट लाइकली आपको Cloudflare यूज करना चाहिए। फ्री है और काफी अच्छा स्पीड है और काफी सारे डेटा सेंटर्स हैं। तो ये पार्ट हमने कैशिंग और सीडीएन कवर कर लिया कि कैशिंग का क्या एडवांटेज है कि लोकल ब्राउजर में कैश हो रहा है तो उससे सबसे पहले वो फेच करेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर ब्राउजर में नहीं है तो सीडीएन में फेच करेगा जो कि उसके नियरेस्ट लोकेशन के डेटा सेंटर में रहेगा, बार बार हमारे मेन सर्वर पे नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं जो हमारा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। करेक्ट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअल में जो हमारा जो है वेबसाइट में कहीं भी होता है वो इमेज इटसेल्फ है, क्योंकि इमेज ही, बाकी आप रिसोर्सेज देखेंगे कुछ 20 KB, ज़्यादा से ज़्यादा 20 KB होगा। वही बहुत अच्छी थीम लिखी है तो 10-20 भी नहीं जाएगा, वो 10 के नीचे रहेगा। तो सारे रिसोर्सेज भी आप जोड़ लेंगे तो वो में भी 100 KB जाएगा कुछ ऐसा। लेकिन आप अगर एक इमेज ऐड करते हो, एक सिंगल इमेज 200-300 KB जा सकती है, और 4-5 आपने ऐड करके वो अकेला 1 MB। सो 80% ऑफ रिसोर्स आपका या 80% ऑफ जो बैंडविड्थ है आपका वो केवल इमेज फेच करने में चला जाता है। तो उस सिनेरियो में इमेज ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में इमेज ऑप्टिमाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फ्रंट एंड के अराउंड की हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हमारी 3 चीजें हैं। फर्स्ट इज compression and resizing, second is vector encoding, third is lazy loading. So what is compression and resizing? So let's say if we have like image जिसका size maybe like 10,000 by 10,000 पिक्सल है और उसका साइज पे 2-3 MB हो जाएगा, मे बी हमें उस साइज की इमेज की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। 10,000 by 10,000 हमारा ब्राउजर, हमारे इवन जो सिस्टम यूज करते हैं वो भी इतना पिक्सल में नहीं होता है, उसको रिड्यूस करके शो करेगा फिर हमें भी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है
तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप बेसिकली एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते, कुछ ऐसा कर सकते हो कि इमेज को पहले रिसाइज करें और उसको कॉम्प्रेस भी कर दें कि उससे क्वालिटी भी ज़्यादा लॉस ना हो और इमेज भी रिड्यूस हो जाए। तो कॉम्प्रेशन एंड रिसाइजिंग में वो पार्ट आता है, इसमें हम स्मश यूज करके दिखाएंगे कि अभी इसको कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब पी कोडिंग। वेब पी कोडिंग क्या होता है, इमेजेस में इनकोडिंग होती है, हम जेपीजी पीएनजी इन जनरल यूज करते हैं, लेकिन जेपीजी पीएनजी के साइज इन जनरल ज़्यादा होता है। मॉडर्न वेब फॉर्मेट्स है, वेबपी है, एविफ है। एविफ का अभी क्या है, एडॉप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए अभी वेबपी ही पॉपुलर है। वेबपी काफ़ी अच्छा है, एविफ की तरह ही, ऐसे कोई बहुत डिफरेंस नहीं दोनों में देखा जाए तो। वेबपी इन कोडिंग में इतना डिफरेंस आ जाता है कि आपको कभी कभी 50 to 60% इमेज साइज का रिडक्शन मिलता है, ये काफ़ी बड़ा रिडक्शन देता है। तो 129 की भी इमेज जैसे यहाँ दिख रही है, इसको रिड्यूस कर 95.4 KB हो गया। कभी कभी आप बड़ी इमेज खासकर इससे 400 MB 400 KB के अराउंड आप डालते हैं तो उसमें 100 के नीचे भी आ सकता है वो, तो कभी कभी 60-70% रीच कर जाता है। और वेबपी का खास बात है इसका क्वालिटी भी डाउनग्रेड नहीं होता है, क्वालिटी भी वैसे ही रहेगा आपका। तो वेबपी मॉडर्न एक फॉर्मेट है, तो हमें इमेजेस को अपनी एक्चुअल में इमेज का ऑप्टिमाइजेशन, अगर हम खुद ब्लॉग लिख रहे हैं या हम न्यूज़ लिख रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली अपने सिस्टम से ऑप्टिमाइज करके डाल सकते हैं तो बेटर है। जैसे हम लोग जनरली ऐसे ही करते थे अपने ब्लॉग वगैरह में, हम खुद ही अपना ऑप्टिमाइज करते थे टूल्स यूज करके, एडोबी वगैरह, उसके बाद डालते हैं। हम लोग प्लगइन्स इन जनरल कम यूज करते थे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं डेली की, आप नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए फिर आपको प्लगइन्स यूज करने पड़ेंगे। और वेबपी के लिए हम लोग वेबपी एक्सप्रेस लिखेंगे। नेक्स्ट थिंग जो हमारा है वो लेजी लोडिंग है। लेजी लोडिंग बेसिकली इमेजेस अगेन बहुत बड़े रिसोर्स है, ये केवल इमेज में काम नहीं करता, ये तो बाकी रिसोर्स में काम कर सकता है, लेकिन इमेज हम लोग देखेंगे और इमेज ही इंपॉर्टेंट पड़ते हैं यहाँ पे। इमेजेस बड़े हैं, 100 KB के 5 इमेजेस हैं, राइट, और आपने ब्राउजर पे रिक्वेस्ट भेजा तो 500 KB का डेटा तो आपको एक बार में ऐसे लोड होगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लेजी लोडिंग ऐड कर सकते हो कि जब यूजर जिस स्क्रीन पे वहां पे जो इमेजेस चाहिए केवल वो इमेजेस जाएंगी, तो जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करेगा फिर वो इमेजेस धीरे धीरे वहां पे लोड होती जाएंगी जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल कर रहा है, ताकि एक बार में यूआई ब्लॉक ना हो कि रिसोर्सेस फेच करने में पूरी बैंडविड्थ ना चाहिए, तो उसको लेजी लोडिंग बोलते हैं। लेजी लोडिंग के लिए हम ऑटो ऑप्टिमाइज ही यूज करेंगे। तो वन बाय वन हम ये तीनों चीजें देख लेते हैं। मैं प्लगइन्स में जाऊंगा दोबारा, मैं जेटपैक को डीएक्टिवेट कर देता हूँ। बस 3 प्लगइन्स थे, वो हमारे पास भी यहाँ पे स्मश है, स्मश को मैं एक्टिवेट करता हूँ। एक वेबपी एक्सप्रेस है जो वेबपी कन्वर्ट करेगा, उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। और अगेन एक ऑटो ऑप्टिमाइज था जो लेजी लोडिंग करेगा, मैं इसको लास्ट में एक्टिवेट करूँ। पहले स्मश को हम देखते हैं, स्मश क्या करता है। स्मश पे जाएंगे, बल्क स्मश, स्मश में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। आप सेटिंग्स, बल्क स्मश में जाना है, सेटिंग्स आएगा, कॉम्प्रेशन लेवल आप सुपर चूज करना, लॉसी कॉम्प्रेशन रहेगा, बेसिक में जाएगा लॉसलेस रहेगा, लेकिन इसमें फिर क्या रहेगा कि साइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप सुपर यूज कर लेना, उसमें लॉसी कॉम्प्रेशन। आप प्रो वर्जन है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये और बेटर कॉम्प्रेशन देगा आपको और क्वालिटी बहुत अच्छे से मैच करेगा, लेकिन ये प्रो वर्जन में। लेकिन मैं बताऊँ सुपर में काम चल जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप सुपर सेलेक्ट करना, इमेज साइज में आप ऑल करना, कस्टम भी कर सकते हो, वर्डप्रेस थंबनेल्स और मीडियम ये सब फाइल फॉर्मेट थीम के हिसाब से अपने हिसाब से खुद ही बिल्ड करता है, तो आप कस्टम कर सकते हो, कुछ हटाना हटा सकते हैं तो आप ऑल कर सकते हो, हम ऑल यूज करेंगे। अभी मैं ऑटोमेटिक कॉम्प्रेशन हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है कि कॉम्प्रेशन हो रहा है, तो इसको हटा दिया। मेटा टैग आप रिमूव कर सकते हो। मेटा टैग बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इमेज में, आपने जैसे किसी कैमरे से फोटो लिया तो उस कैमरे की फोटो उसका इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाता है, कुछ कमेंट ऐड किया वो ऐड हो जाता है, या फिर आपने इसको जब भी कभी इमेज को अगर आपने वो किया एडिट किया है तो उसका इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो जाता है, तो वो मेटा उसकी इन्फॉर्मेशन में जरूरत ऐसा नहीं पड़ता है, तो हम इस मेटा डेटा भी हटा देंगे। फिर रीसाइज ओरिजिनल इमेज कि हमारे वेबसाइट पे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, राइट, 25, और ये स्टैंडर्ड भी शायद वर्डप्रेस यही देता है अभी, इससे ऊपर की जरूरत नहीं। अगर इससे ऊपर इमेज आ रही है तो पहले इसको रीसाइज कर दो इस साइज में। तो ये रीसाइज का हमने भी सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज को भी हम कॉम्प्रेस करेंगे, राइट, और हमने इसको फिर यहाँ पे सेव कर दिया। तो हमने इस मश का रीसाइजिंग, स्ट्रिपिंग ऑफ एक्स्ट्रा डेटा, कॉम्प्रेशन और ओरिजिनल इमेज कन्वर्शन ये ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं मीडिया में जाता हूँ, लाइब्रेरी,
और मेरे पास कुछ मीडिया फाइल्स हैं, मैं मे बी दिखा देता हूँ यहाँ पे डाउनलोड्स में। तो मेरे पास जैसे ये मीडिया फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे तो इसका डायमेंशन है 3992 बाई 2992 और इसका साइज है 3.9 MB। तो साइज भी ज़्यादा है और डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने स्मश ऑन किया है, मैं यहाँ पे उस फाइल को ऐड करूँगा। डाउनलोड्स में गए और इस फाइल को मैंने ऐड किया। ऐड होने थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्रोसेस भी हो रहा है बैकग्राउंड में। राइट, ये इमेज अब ऐड हो गया है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ आपको, तो आप देखेंगे डायमेंशन जो हमने सेट किया था 2560 बाई 2560, ये उस डायमेंशन में रिड्यूस कर दिया पहले। तो सिमिलरली 3.9 MB की फाइल को 952 KB में कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन है ओरिजिनल में। और इसमें थंबनेल्स भी बनते हैं। ये ओरिजिनल है, थंबनेल्स कैसे देख सकते हैं, या फिर मैं ट्राई करता हूँ, हो सकता है थंबनेल ना हो। ठीक है, ये इसका थंबनेल साइज नहीं है, दूसरा कोई थंबनेल साइज होगा, एक बार इसको थंबनेल को भी चेक कर लेंगे। बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं इसके थंबनेल भी बनेंगे, और थंबनेल को आपको कॉम्प्रेस करना है, सब कॉम्प्रेस करना है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक कॉम्प्रेशन हटाया हुआ था जब यहाँ स्मश करूँगा मैं। तो ये थंबनेल जो बाकी इमेजेस ओरिजिनल इमेजेस है सबको ये प्रोसेस करना चालू करेगा। आप इसको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक वाला चेक बॉक्स था उसको ऑन करके, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मश ने क्या किया, स्टैट्स दे दिया आपको कि जो फुल साइज थी, जो मेन इमेज थी, इसमें 870 का कॉम्प्रेशन किया, 22% रिडक्शन। स्केल्ड इमेज जो हम ये देख रहे हैं, इसमें इन्होंने 51 KB का कॉम्प्रेशन किया, 5% का। सिमिलरली जो थंबनेल्स जो भी बने हैं उसमें भी 56% या 18%, थंबनेल 34, क्योंकि ये छोटा फाइल है तो 34% का कॉम्प्रेशन किया है। तो इस तरह से इन्होंने अच्छा खासा बैंडविड्थ, अभी अच्छा खासा साइज आप देख सकते हैं, डिस्क का मेरे बचा लिया। डिस्क भी हमारे पास रहता है, राइट, ये 1 MB का तो डिस्क मेरा बच गया यहाँ पे एक सिंगल फाइल अपलोड में। तो इस मश का हमें ये एडवांटेज मिल जाता है, इमेज लाइट हो जाती है, और अगेन हमें फिर इसका टेंशन नहीं रहता कि हमें बार बार इमेज फॉर्मेट करके डालनी है। तो ये इस मश का एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं वेबपी पे। वेबपी में ये हमारा कॉम्प्रेशन वाला पार्ट हो गया, राइट, कॉम्प्रेशन रीसाइजिंग। और वेबपी में इमेज का जो आई है उसको कन्वर्ट भी करना है, राइट, जो हमें इमेज आई है उसको वेबपी में करना है ताकि इवन और मुझे कंप्रेशन मिले। उसके लिए मैंने कुछ सेटिंग्स पहले से भी की है कि हमें अपलोड्स में जो फाइल्स हैं उसको कॉम्प्रेस करना है, उसको मॉडिफाई करना है वेबपी में, बोथ जेपीजीज एंड पीएनजी। इसमें और भी ऑप्शन है, सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, इसमें आप थीम को भी कन्वर्ट कर सकते हो। मिंगल्ड मैं मतलब साथ में रखना चाह रहा हूँ इमेज की, लास्ट में वेबपी अपेंड हो जाएगा। अब नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, मैं अपेंड करूंगा। उसका डेस्टिनेशन मैंने इमेज रूट रखा है, तो आप डॉक्यूमेंट रूट भी कर सकते हो। इमेज रूट मतलब सेम जहाँ पे इमेज है वो फाइल वहीं पे आ जाएगी। और उसके बाद ऑप्शन आते हैं जेपीजी पीएनजी में, दो तरह के ऑप्शन है, लॉसी है, लॉसलेस है। अगेन जैसे हमने कॉम्प्रेशन में भी देखा था कि बेसिक में लॉसलेस था, लॉसलेस में एकदम क्वालिटी नहीं जाता, लेकिन कॉम्प्रेशन भी फिर कम होता है। वाइल लॉसी में कॉम्प्रेशन आप कितना भी कर सकते हो, थोड़ा सा क्वालिटी मैनेज करके रखोगे। जैसे इसमें 80 की लिमिट रखी है हमने, फॉल बैक 70 तक जाएगा, और नियर लॉसलेस 60 किया मैंने, मे भी इसको भी सेफ्टी साइड में 80 कर देता हूँ। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो वेबपी में भी, यहाँ वेबपी में कन्वर्ट होगा, थोड़ा सा कॉम्प्रेशन भी हो जाएगा एक्स्ट्रा। आप लॉसी और लॉसलेस अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, मे भी आप लॉसलेस कर सकते हो, लॉसी मत करो। लेकिन आपका न्यूज़ ब्लॉगिंग है, आप लॉसलेस रखो, सॉरी लॉसी रखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेटा डेटा भी रिमूव कर देगा, ये हम स्मैश में ऑलरेडी कर रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन तब भी सब कन्वर्ट ऑन अपलोड मैंने कर दिया, जब भी अपलोड हुआ तो कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि HTML में भी ये अपने आप चेंज हो जाए जब भी हम HTML, जब भी यूजर पेज ओपन करेगा, क्योंकि अब हमारा वेब की इमेज आ गया है, लेकिन हमारे कोड में तो डॉट जेपीजी अभी भी जाएगा जब पेज ओपन करेगा, तो ये ऑटोमेटिक उसको रिप्लेस कर देगा वेब की से। मैं इसको करता हूँ सेव सेटिंग्स, और ऑटोमेटिक कन्वर्ट मैंने डाला हुआ है, तो
फिर से मीडिया में जाते हैं, मैं 2 फाइल्स को मैं भी डिलीट कर देता हूँ, डिलीट परमानेंटली, इसको भी डिलीट परमानेंटली। एक चीज चेक कर लेते हैं, स्मश ऑन है, ओके, स्मश में रन कर देता हूँ। मीडिया में गए, वापस से हम मीडिया फाइल्स वो दोनों जो थी उनको ऐड करते हैं। इसमें हो रहा है इसका, मैं एक बार रीलोड करके देखता हूँ। एक इमेज अभी ऐड करते हैं, मैं भी क्लाउडफ्रंट का लोगो ऐड कर देता हूँ। तो ये लोगो ऐड हो गया और प्रोसेस भी हो गया, इमेज दोनों चीज़ एक साथ हो गई। उसका इमेज साइज बहुत ज़्यादा था जो पुराने वाले का, और अराउंड 10 MB के ऊपर जा रहा था टोटल में, इसलिए टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया यूआरएल को, ये 153 KB का यूआरएल है। बैकग्राउंड में हमारा जेपीजी बन जाना चाहिए। मैंने इसको ओपन किया, इंस्पेक्ट पे गए, डॉक पे गए, या ऑल पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया, ये साइज आया मेरे को 154 कैशिंग डिसेबल, ये साइज है मुझे 157 KB का। अब मैं इसी को वेबपी में ओपन करता हूँ, इसका वेबपी बन गया बैकग्राउंड में क्योंकि हमने वो प्लग इन ऑन किया था। ये हमारा वेबपी आ गया। अगेन नेटवर्क में गए, मैं डिसेबल कैश, इसमें आप देखें केवल 7 KB है, ये 157 था और ये 7 KB, ये ऑलमोस्ट 100% कॉम्प्रेशन, ऑलमोस्ट 100% रिडक्शन है साइज में। क्वालिटी आप देखेंगे तो ये क्वालिटी और ये क्वालिटी में कोई डिफरेंस है सच खास नहीं है, मुझे एटलीस्ट विजुअली मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ कॉम्प्रेशन डिफरेंस। वेबपी में एक बहुत ड्रास्टिक आपको चेंज ये देखने को मिलता है, तो इसलिए वेबपी आपके पास हमेशा होना चाहिए, वेबपी कॉम्प्रेशन। तो वेबपी का डिफरेंस हमने देख लिया, और मैं उस प्लगइन को डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो वेबपी का हमने डिफरेंस देख लिया। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था लेजी लोडिंग। इसके लिए मैं इसको फिर से बंद करता हूँ वेबपी को। लोडिंग के लिए वापस ऑटो ऑप्टिमाइज में आते हैं। लेजी लोडिंग अगेन था कि इमेजेस अब काफी सारी हमारे ब्लॉग में है, राइट, हमारे ब्लॉग में काफी इमेजेस दिख रही हैं, और उन इमेजेस को हमें एक साथ लोड नहीं करना है। जब भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, पेज लोड कर रहे हैं, इमेजेस सारी एक साथ आ जा रही हैं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एक जब स्क्रॉल करें तो ही इमेजेस हमें दिखें, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे बस वो लोड हो जाए, डिफॉल्ट इमेज है या जो भी हमारा ये इमेज है, बाकी इमेजेस बाद में लोड हो जो नीचे आ रही हैं, ये सब जो इमेजेस है बाद में लोड। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, लेजी लोडिंग ऐड करेंगे। सेटिंग्स में गए, ऑटो ऑप्टिमाइज इमेजेस में, अच्छा ये ऑलरेडी यहाँ पे अपने लेजी लोड इमेजेस को चेक किया। लेजी लोड फ्रॉम एनथ इमेज, या आप लोगों के लिए स्किप कर सकते हैं, 1 2 डाल सकते हैं, तो उतने नंबर स्किप, मैंने ऑल किया हुआ है। इस सारी चीजें लेजी लोड होंगी जितना कर सकता है। मैंने लेजी लोडिंग ऑन किया है इसको, ओके। मैं इस पे इनकॉग्निटो पे आता हूँ क्योंकि इनकॉग्निटो पे ही वो काम करेगा। लॉग्ड इन यूजर्स पे ज़्यादातर प्लगइन काम नहीं करते क्योंकि वो एक्चुअल डेटा दिखाना चाहते हैं आपको, जैसा वेबसाइट काम कर रहा है विदाउट प्लगइन।
अब यहाँ पे आप देखोगे इमेजेस केवल ये 2 इमेजेस कॉल हुई, ये जो आ रहा है जानकी अमाल उनका इमेज आया, और सेकंड इमेज कॉल हुआ वो सेकंड न्यूज़ का जो इमेज आया हुआ है, बाकी आपको ये ऑथर का इमेज आया। अब मैं इसको स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, एक नया इमेज आया, स्क्रॉल, ये नया इमेज आया और स्क्रॉल करते जाएंगे, ये नया इमेज आया, ये इमेजेस आए, और इस तरह हमारी सारी इमेजेस आ गई बेसिकली। अब जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ नई इमेजेस यहाँ पे आई ब्लॉग से, जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो ही ये इमेजेस फेच हो रही हैं, और कुछ तो डिस्क कैश भी हो रही है, हमने डिस्क कैश को ऑफ नहीं किया था, जो कैश में थी वो कैश से आ गई, लेकिन बाकी जो इमेजेस थी वो एक्स्ट्रा हमारा कॉल हुई फिर। तो हमारा ये एडवांटेज हो जाता है लेजी लोडिंग का, कि एक बार में वेबसाइट पे लोड नहीं आता है, कि हमें सारी इमेजेस एक बार फेच करनी, जो यहाँ पे मैं आ रहा था कि मैं जब क्लिक किया तो सारी इमेजेस एक बार फेच हो रही हैं, और इन इमेजेस का साइज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, 200-300 KB हो सकता है। सिंगल रिक्वेस्ट में 300 KB कोई फायदा नहीं है, कुछ 10-20 KB में हो जाए तो बेटर है। तो ये हमारा लेजी लोडिंग हो गया। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का था वो हमने कवर कर लिया है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। मैं प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर देता हूँ एटलीस्ट अभी के लिए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे। मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है कैशिंग, हो गया था राइट, बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन है न्यूज़ और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के लिए, स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए। स्टैटिक प्रिफर्ड वर्ड होगा यहाँ पे। जब भी हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, अगेन इसमें मैं पहले तो समझाऊंगा कि है क्या चीज़। जब भी कोई यूज़र वेबसाइट ओपन करता है राइट, कुछ डालता है atomstop.com या staging.atomstop.com/something something, वो पहले डीएनएस पे जाता है। तो डीएनएस क्या करता है, उसका आईपी एड्रेस देता है, आईपी एड्रेस से फिर वो रिजॉल्व होता है कि कहाँ से रिसोर्स फेच करना है, फिर वो nginx पे जाएगा जो हमारा मेन वेब सर्वर है। क्लाउडफ्लो बाय द nginx पे डिप्लॉयड है एटमस्टॉप, और जो मेरी पर्सनल वेबसाइट्स हैं वो nginx यूज़ कर रहे हैं। तो nginx पे जाएगा, nginx से फिर वो डेटाबेस क्वेरी करेगा, अगर डेटाबेस में डेटा है, इमेजेस वगैरह है तो डिस्क से फेच करेगा। मैंने डिस्क नहीं बनाया है यहाँ पे, लेकिन डिस्क भी हमारा एक रहेगा, कोड हमारा डिस्क में पड़ा रहेगा राइट, और डिस्क से हमारी इमेजेस बाकी चीज़ें डिस्क से फेच करेगा, उसके बाद फिर ब्राउजर को भेजता है। ये ओवरऑल एक पैटर्न है। अब हमारा 3 तरह के कैश हम इन जनरल यूज़ करते हैं यहाँ पे, जिससे हमारा ये जो टोटल ट्रेवल टाइम है यहाँ से डेटाबेस या डिस्क पे, वो रिड्यूस हो जाए। उसके लिए 3 तरह कैश होते हैं। एक होता है एज कैश, एक होता है पेज कैश, और एक होता है ऑब्जेक्ट कैश। पहले मैं ऑब्जेक्ट कैश बताता हूँ क्या होता है। ऑब्जेक्ट कैश होता है जब भी आपका वेब सर्वर रन करेगा और पीएचपी एप्लीकेशन रन करेगी, पीएचपी प्रोसेस रन करेगा, पीएचपी डेटाबेस कॉल करेगा राइट, जो भी आपका इंफॉर्मेशन सेव है वो डेटाबेस में सेव होता है। तो डेटाबेस में सेव होता है तो हर बार आपको डेटाबेस को कॉल करेगा। ये बहुत ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। आप ये देखिए, आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा डेटा राइट, लेकिन बार बार जब 1000 यूजर आ रहे हैं, 1000 रिक्वेस्ट आ रही है, पीएचपी बार बार सेम क्वेरी के लिए डेटाबेस को कॉल कर रहा है। तो ये क्या है कि एक डेटाबेस पे एक्स्ट्रा लोड है, फिर आपको डेटाबेस स्केल करते रहना पड़ेगा, जो कि बेटर अप्रोच नहीं है। तो उस केस में हम ऑब्जेक्ट कैशिंग यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट कैश में क्या होता है कि जो भी डेटाबेस का कैश है, जो भी क्वेरी बार बार डेटाबेस में जा रही है, उसको वो कैश करके, उसकी आउटकम को कैश करके, जो भी वैल्यूज हैं राइट, उसको उठा के इन मेमोरी कैश में डाल देता है। इन मेमोरी कैश रैम पे रहता है, डेटाबेस इन जनरल डिस्क पे रहता है। इनमें कुछ चीज़ें हैं जो वो भी इन मेमोरी करते हैं, लेकिन वो उतना मतलब स्केलेबल नहीं है जितना कि इन मेमोरी कैश होता है। इन मेमोरी कैश में हमारे 2 ऑप्शन रहते हैं, रेडिस और मेम कैश। ये लिटरली रैम पे काम करते हैं, रैम जो है डिस्क से बहुत फास्ट होता है, मल्टी टाइम्स फास्ट होता है। तो ये रैम में स्टोरेज करके देते हैं। जब भी पीएचपी प्रोसेस को डेटा चाहिए, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कैश से फेच करके डायरेक्ट nginx को भेज देगा, सॉरी पीएचपी को भेजेगा। पीएचपी उस डेटा का तुरंत यूज करके इंजन पेज कंपाइल करके एचटीएमएल वापस डेटा भेज देता है। तो ऑब्जेक्ट कैश हमारा डेटाबेस क्वेरीज को ड्रेस्टिकली रिड्यूस करता है और स्पीड को भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है उस सेंस में, क्योंकि ये इन मेमोरी कैश है, ये रैम से डायरेक्ट डेटा भेजना है।
दोनों ही, ये दो हमें बड़े एडवांटेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट है पेज कैश और एज कैश, ये दोनों काफी सिमिलर हैं। पेज कैश क्या होता है, हमारा nginx है, राइट, nginx वेब सर्वर है, ये जरूरी है nginx हो, ये लाइट स्पीड भी हो सकता है, अपाचे हो सकता है, और भी कोई दूसरा आप यूज करें, तो इन जनरल पेज कैश सबको देता है। तो अब यहाँ पे जब आप nginx यूज करेंगे, लाइट स्पीड यूज करेंगे, लेट्स से, तो मैं पेज कैश का ऑप्शन है, तो इसमें क्या होता है कि अब जो स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक कंटेंट है, वो चेंज नहीं होना है। आपका ब्लॉग है, कुछ ब्लॉग चेंज नहीं होना, राइट। अब जब कभी अपडेट करेंगे, मे बी 30 डेज में करेंगे या उसके बाद करेंगे। फिर न्यूज़ वेबसाइट से आपने एक बार डाल दी, इन जनरल न्यूज़ वेबसाइट के लाइफ एक वीक तक होती है, इवन उससे कम भी हो सकता है अगर कुछ बहुत ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ टाइप की चीज़ें हैं। उसके बाद वो स्टेल हो जाता है, उसमें मोस्ट लाइकली आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते। तो उन कंटेंट को हम डायरेक्ट सर्वर पे भी कैश कर सकते हैं, कि हमें पीएचपी पे बार बार ना जाना पड़े। मुझे यहाँ पे एक्चुअली पीएचपी ऐड कर देना चाहिए ताकि क्लैरिटी रहेगा मैं जब भी पीएचपी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है, क्यों है पता नहीं। ठीक है, तो पीएचपी, तो जो भी रिक्वेस्ट है nginx का, ये पीएचपी पे जाएगा और पीएचपी प्रोसेस करके nginx को डेटा भेजता है। अब यहाँ पेज कैश में क्या होगा कि डेटा यहीं पे सर्वर लेवल पे सेव हो जाता है और पीएचपी तक रिक्वेस्ट भी नहीं जाएगी। आप डायरेक्टली जैसे यहाँ से ब्राउजर ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर तुरंत उस स्टैटिक पेज को यहाँ पे वापस भेज देगा ब्राउजर के पास इमीडिएटली। इससे क्या होगा, टाइम टू फर्स्ट बाइट आपका काफी लो हो जाता है, क्योंकि पीएचपी को कुछ प्रोसेस नहीं करना है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका टाइम टू फर्स्ट बाइट तो लो होता ही होता है, ऊपर से पीएचपी प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। वेब सर्वर इन जनरल स्लो नहीं होते हैं, वेब सर्वर काफी हद तक ट्रैफिक ले जाते हैं, तो आपका रिसोर्सेज भी काफी ज्यादा सेव होता है अगर पीएचपी को प्रोसेस करने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत कम रिसोर्सेज में काफी अच्छा स्केल कर जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ओके मैं एज कैश भी समझाता हूँ। पेज कैश क्या है, लेकिन पेज कैश का प्रॉब्लम है, ये मेन वेब सर्वर पे कैश होगा। आपका सर्वर अगर यूएस में डिप्लॉयड है या इंडिया में डिप्लॉयड है या फिर यूरोप में डिप्लॉयड है, तो वो उस सर्वर में वो कैश होगा। वो जो डेटा बनेगा कैश का, वो उस सर्वर में बनेगा nginx का। तो अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि अगेन प्रॉब्लम लेटेंसी का यहाँ बना रहेगा कि अगर इंडिया में है यूजर, यूएस का अगर एक्सेस कर रहा है तो उसको लेटेंसी मिलेगा, क्योंकि वो मेन सर्वर तो इंडिया में है। तो वो एक लेटेंसी का पार्ट है, वो हमेशा ऐड होगा। लेकिन टाइम टू फर्स्ट बाइट रिड्यूस रहेगा, सर्वर तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन लेटेंसी नेटवर्क की रहेगी। तो उस केस में हमारा एच कैश आता है। एच कैश क्या करता है कि एच कैश आपका इसी पेज कैश को उठा के, अगेन ये एग्जैक्टली सीडीएन है, सीडीएन में नियरेस्ट लोकेशन पे कॉपी कर रहा था। एच कैश डेटा सेम चीज उठा के, सेम पेज कैश का डेटा उठा के एज लोकेशन पे कॉपी कर देगा, एग्जैक्टली लाइक सीडीएन। यूएस का यूजर जब इसको ओपन करेगा तो उसको एज कैश नियरेस्ट सर्वर से ही डेटा मिल जाएगा, यूरोप का करेगा उसको नियरेस्ट सर्वर से मिल जाएगा। तो एज कैश एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाता है पेज कैश में। एज कैश, अगेन एज कैश के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर सॉल्यूशंस नहीं है, लेकिन क्विक क्लाउड आप यूज़ कर सकते हैं। क्विक क्लाउड में अगेन वो लाइट स्पीड का है, वो ऑप्शन ये देता है। एक क्लाउड फ्लेयर है, क्लाउड फ्लेयर में भी आप एज कैश इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लाउड फ्लेयर बेटर मैं चॉइस मानता हूँ, कि क्लाउड फ्लेयर की डेटा सेंटर्स जो है वो ज़्यादा है। मैं एक बार कंपेरिजन की में भी ओपन करके दिखा सकता हूँ। क्विक क्लाउड सीडीएन नेटवर्क, क्लाउड फ्लेयर, पीओपी बेसिकली पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो उनका। तो क्विक क्लाउड के आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लाउड फ्लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा, इवन इंडिया में आप देखेंगे शायद इसके 3-4 ही डेटा सेंटर थे। मुंबई था, बैंगलोर था, दिल्ली था, बाकी पाकिस्तान ढाका होती। लेकिन क्लाउड फ्लेयर के इंडिया में ही 18 डेटा सेंटर्स हैं एक्चुअल में। तो क्लाउड फ्लेयर का रीच अच्छा है, इसलिए क्लाउड फ्लेयर प्रेफर करता हूँ मैं भी जब भी सीडीएन की बात आती है। तो ठीक है, अब ये हो गया हमारा, इसको डेमो की तरह देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट कैश से स्टार्ट करता हूँ। ऑब्जेक्ट कैश के लिए 2 प्लगइन मैं यूज करूंगा। एक तो रेडिस ऑब्जेक्ट कैश, टिल्क्रोस के द्वारा बनाया हुआ, ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है और इन जनरल सबसे ज़्यादा यूज ये होता है। तो मैं पहले इसको एक्टिवेट करूंगा, या फिर मैं, और दूसरा क्वेरी मॉनिटर है जिसमें हम देखेंगे एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है, डेटाबेस का रिड्यूस कैसे करता है साइज।
तो मैं दोनों को चेक कर लिया, बल्क एक्शन, एक्टिवेट, अप्लाई। अब ये ऑब्जेक्ट कैश पे हम आ गए, ऑब्जेक्ट कैश के प्लगइन में मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। रेडिस इंस्टॉल्ड है सिस्टम में, तो ये रेडिस को यूज करके इनेबल कर देगा। राइट, हमारा ऑब्जेक्ट कैश इनेबल हो गया और क्वेरी मॉनिटर भी इनेबल हो गया। क्वेरी मॉनिटर आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, ऊपर आपको डेटा आएगा, इसमें आप डेटाबेस क्वेरी में जाके देख सकते हैं। ये पेज रिफ्रेश होने में जैसे 16 क्वेरीज हुई हैं, तो ये आपको सारी डेटाबेस की क्वेरीज यहाँ से दिख जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, इस मेन पेज को। अभी हमारा इस मेन पेज का कुछ भी कैश नहीं हुआ है, इसको अभी बंद कर सकते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसमें ये क्वेरी मॉनिटर लिया है, डेटाबेस क्वेरीज, इसमें आप देखेंगे डेटाबेस कॉल्स टोटल 60 हुई हैं। अभी हमारा कैशिंग नहीं है, कैशिंग ऑन, सॉरी, ऑब्जेक्ट कैश अभी नहीं बना क्योंकि हमने पहला रिक्वेस्ट भेजा है। तो टोटल 60 क्वेरी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा रिक्वेस्ट भेजता हूँ। दोबारा रिक्वेस्ट में आप देख रहे हैं नो डेटाबेस क्वेरीज फॉर लॉक्ड। इस पेज को लोड करने में सेकंड क्वेरी में एक भी डेटाबेस क्वेरी नहीं हुआ, तो पूरे के पूरे 60 जो है रेडिस में कैश हो गया है। इस फ्रंट पेज के लिए पूरा पूरा डेटा रेडिस में कैश हो गया है। इसमें आपको हिट रेट भी मिल जाता है, 86% हिट रेट है, मतलब 86% क्वेरीज को ये भेज दिया। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस आपको दिखता है, क्योंकि 60 क्वेरीज काफी ज्यादा हो जाती है और नो क्वेरीज अगेन बहुत मच बेटर है। और अगेन ये सारी चीजें इन मेमोरी से आ रही हैं, रैम से आ रही हैं, तो वेबसाइट के लिए जो भी डेटाबेस क्वेरी पीएचपी को चाहिए वो बहुत फास्ट उसको मिल जाती है और पेज जल्दी रेंडर करके वो भेज सकता है। तो ऑब्जेक्ट कैश बहुत एडवांटेजेस है, स्पेशली उन केसेस में जब हमारे पास ई कॉमर्स वगैरह में, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, रियल टाइम ट्रैफिक रहता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म नहीं, एक्चुअली इसको रेगुलर आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमारा अच्छा खासा लोड ये बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो ऑब्जेक्ट कैश का हमारा ये हो गया। इसको दोबारा मैं आपको चाहूँ तो मैं दोबारा भी एक बार दिखा सकता हूँ कि मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी जैसे नो डेटाबेस पे मैं कैश फ्लश कर देता हूँ, इसको मैं वापस रीलोड करता हूँ। आप देखेंगे वापस से वही 60 क्वेरीज, 62 क्वेरीज अब बढ़ गए। मैंने कैश जब क्लिक किया वो सारा डेटा डिलीट कर दिया कैश से, फिर से मैंने को इतनी क्वेरी करनी पड़ी, फिर से मैं रीलोड करूँगा मोस्ट लाइकली, फिर नोट क्वेरीज वर लॉक। पूरा पूरा हमारा डेटा रेडिश कैश से आ गया। तो ये कैश का ये यूज रहता है और ये हमें डेफिनेटली यूज करना चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं नेक्स्ट पे आता हूँ जो पेज कैश है। मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। राइट, पेज कैश के लिए प्लगइन्स एनजीएनएक्स के मैंने कोई खास यूज नहीं किया, मैं जनरली एनजीएनएक्स पे डायरेक्ट जाके काम करता था। और सिमिलरली क्लाउड फ्रंट प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन, तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ अभी। तो कि आप एप्लीकेशंस में जाते हैं, स्टेजिंग पे जाए, ये स्टेजिंग वेबसाइट है मेरा, इसे पेज कैश इनेबल करने का डायरेक्ट ऑप्शन है, एनजीएनएक्स पे डिप्लॉयड है, तो पेज कैश का ऑप्शन यहाँ से, तो मैं इन जनरल यही यूज करता हूँ, ये लाइव वेबसाइट्स पे यही चल रहा है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, और शायद पेज कैश इनेबल हो गया है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इंस्पेक्ट नेटवर्क डॉक। राइट, आप ये देख रहे हैं एक्स्ट फास्ट सीजीआई कैश बाईपास। एनजीएनएक्स के केस में इन जनरल हम एक ये हेडर भेजते हैं कि कैश हिट है कि मिस। कैश हिट मिस की बात होती है, इसका ये मतलब होता है मिस बाईपास भी हो सकता है। तो हिट का मतलब है कि डेटा कैश से आया, जो भी कैश किया था, चाहे वो सीरियन कैश होगा या मेन सर्वर का एनजीएनएक्स का कैश होगा, हिट का मतलब होता है। मिस का मतलब होता है कि वो मिस कर गया, कैश वहां मिला नहीं, तो मेन सर्वर को कॉल करके डेटा फेच किया। बाईपास का मतलब है कि वो बाईपास ही कर दिया, उसको पता है कि मेरे को कैश में जाना ही नहीं, वो डायरेक्ट सर्वर पे जाएगा। तो 3 तरह के डायरेक्टिव्स हमें जनरल देखने को मिलते हैं कैश के अराउंड। तो ये बाईपास कर गया क्योंकि हमने एडमिन से लॉग इन किया हुआ है, बाईपास हो गया,
मैं अब इस पे जाता हूँ, ये हमारा इनकॉग्निटो है, इस पे मोस्ट लाइकली डॉक पे गया, और अगेन ये HTML कैश करेगा, ये मेन डॉक को कैश करता है। हमारे वेबसाइट रेंडरिंग होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है, कभी भी देखोगे सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है, इसमें हमारा कोड रहता है, जो भी CSS फाइल चाहिए, JS फाइल चाहिए, जो भी चाहिए हमें वो इसमें इसमें पड़ा रहता है। जब ब्राउजर इसको रीड करता है, राइट, CS JSS क्या क्या इसको चाहिए, फिर वो वहां से फेच करना शुरू करता है कि ये CSS फाइल चाहिए, ये JSS फाइल चाहिए। तो सबसे पहले इसी को हमने कैश कर दिया बेसिकली, इस मेन डॉक को, और इसको कैश किया, तो आप देखोगे यहाँ पे हमको हिट आया, यानी ये डेटा जो है ये कैश से आ रहा है हमारे पास। अब इसका बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइम टू फर्स्ट बाइट में कैसे डिफरेंस लाता है। मैं वापस जाके इसको एक बार डिसेबल कर देता हूँ। होपफुली ये डिसेबल हो गया। ओके, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, इसमें टाइम टू फर्स्ट बाइट डेटा हमको आ जाता है। मैं लकीली इसमें स्टेजिंग वाला पड़ा है, अभी मैंने पेज कैश को डिसेबल किया, मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें टाइम टू फर्स्ट बाइट मेरे को 7749 मिली सेकेंड ऐसा आ रहा है। मैं इसको मल्टीपल टाइम्स रन करता हूँ। 98 एक सेकंड चला गया। तो टाइम टू फर्स्ट बाइट जो हमारा है वो इस रेंज में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पेज कैश को ऑन कर देता हूँ। पेज कैश को ऑन मतलब Nginx अब हमारे पेज को कैश करना शुरू करेगा। शायद इनेबल हो गया है। मैं इसको वापस से लोड करता हूँ ताकि कैश बिल्ड हो जाए। फर्स्ट वाले में जनरल बिल्ड नहीं होता, ये हिट हो गया, ठीक है। अब मैं वापस से इसको रन करता हूँ। अब आप टाइम टू फर्स्ट बाइट देखिए, 0.01 चला गया, 100 मिली सेकेंड में आ गया। पहले 700 800 एक सेकंड तक जा रहा था। फिर से मैं रन करता हूँ, फिर देखेंगे आप 133 मिली सेकेंड। तो ये ड्रास्टिक डिफरेंस है, आपको अच्छा खासा 80% तक लोअर टाइम टू फर्स्ट बाइट मिल जा रहा है। ये आपने पेज कैश ऑन किया, तो पेज कैश ऑन करने का आपको ये फायदा होता है कि टाइम टू फर्स्ट बाइट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि Nginx से डायरेक्ट आ रहा है, PHP प्रोसेस में नहीं जाए। स्टैटिक में आपको डेफिनेटली ये चीज होनी चाहिए। तो पेज कैश अब हमारा हो गया लोकल सर्वर। अब हमें चाहिए कि वो सेम चीज, ये पेज कैश है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें, ताकि यूएस वाले, अब नेटवर्क लेटेंसी यहाँ से तब भी नहीं जाएगा अगर मैं सेम चीज को अगर यूएस से रिक्वेस्ट करूँ तो ये ज्यादा आएगा, क्योंकि नेटवर्क का हॉप्स उसमें ऐड हो रहे हैं। अब हमें चाहिए कि वो भी नहीं चाहिए। उस केस में हमने थर्ड ऑप्टिमाइजेशन हम ऐड करते हैं, जो हमने एच कैश की बात की थी। मैं क्या करता हूँ कि मैं एच कैश के लिए जो प्लगइन यूज करेंगे वो सुपर पेज कैश फॉर क्लाउडफ्लेयर है। ये क्लाउडफ्लेयर को यूज करके हमारा एच कैश बना देता है। तो मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा, एक वो डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि पहले पेज कैश में जो करंट लेटेंसी आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ अलग अलग लोकेशन से, राइट। इसको मैंने रन किया, सर्वर इंडिया में डिप्लॉयड है कि, तो आप देख रहे हैं कि यूरोप में थोड़ा लेटेंसी है, अमेरिका में थोड़ा लेटेंसी है, इंडिया में फास्ट रहेगा। पेज कैश ऑन है, राइट, पेज कैश ऑन है। मैं पेज कैश ऑफ करूँ तो ये थोड़ा सा इंडिया में भी बढ़ के आएगा, लेकिन अभी ऑन है। तो आप देख रहे हैं कि नेटवर्क लेटेंसी तो आ रही है, भले ओवरऑल लेटेंसी काफ़ी कम हो गया पेज कैश ऑन करने से। हमारा 200 के नीचे इन जनरल जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम एच कैश ऑन करेंगे यहाँ से प्लगइन को यूज़ करके। सेटिंग्स में गए, मैंने ऑलरेडी कीज वगैरह ऐड की। इसके लिए आपको क्लाउडफ्लेयर पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लाउडफ्लेयर से आपको टोकन की चाहिए रहेगा, टोकन की आप यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद आप डोमेन सेट किए, इसका मेरा सेट किया हुआ है ऑलरेडी। इसका मैं इनेबल पेज कैश करूँगा बस, फुली ये इनेबल हो जाए एक बार में। मैं टेस्ट कैश कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है कैश बिल्ड करने में, वेट कर सकते हैं। लेट्स वेट।
पर लोड करके देख लेते हैं, मे बी डॉक रिफ्रेश में अभी नहीं आया। ओके, 1 सेकेंड, आई थिंक तो क्लाउडफ्लेयर का आप सेट करते हैं, तो आप क्लाउडफ्लेयर का यूआई यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक्चुअल में क्लाउडफ्रेंड के थ्रू क्लाउडफ्लेयर को इंटीग्रेट किया हुआ है, राइट। जब भी आप उसको इंटीग्रेट करते हैं क्लाउडफ्लेयर में, तो आपको रिक्वेस्ट जो भी है डोमेन को प्रॉक्सी भी करना होता है। नॉट प्रॉक्सी है, अभी डायरेक्ट सर्वर पे जाएगा। मैं इसको प्रॉक्सी कर देता हूँ अभी, या आप डायरेक्ट क्लाउडफ्लेयर पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो मैं इसके थ्रू कर दे रहा हूँ। अब मेरा रिक्वेस्ट प्रॉक्सी हो रहा है स्टेजिंग का क्लाउडफ्लेयर के थ्रू, तो हमारा एच कैश अब काम करना चाहिए। यहाँ एक्टिवेट ऑलरेडी हमने कर रखा है, टेस्ट कैश करते हैं फिर से, राइट। अब ये ऑन हो गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस से, पहले हेडर में कुछ भी क्लाउडफ्लेयर का नहीं आ रहा था, अब मोस्ट लाइकली क्लाउडफ्लेयर का मैं रिक्वेस्ट करूँगा। कैश क्लियर करके ट्राई करते हैं। keys fine, stock है। कोई दूसरा कोई ब्लॉग एक बार ओपन करके ट्राई करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। राइट, अभी आ गया। इसमें क्यों नहीं आ रहा था? सरप्राइजिंगली इसमें नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, मैं दूसरा ब्लॉग एक करता हूँ। इसमें आप देखेंगे ये WP सुपर कैश कैश एक्टिव 1, ये अब हमें क्लाउडफ्लेयर से डायरेक्ट डेटा आएगा। इसको मैं वापस रिफ्रेश कर दूँ। मुझे एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा क्लाउडफ्लेयर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। Kshitij, time check, we have the last 10 minutes. राइट, हार्डली 2 मिनट्स लगेगा। Okay. मुझे बस एक बार वेरीफाई करना है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे डेटा वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, मोस्ट लाइकली अभी ये काम कर रहा है। इसको वापस से हम जाते हैं टू फर्स्ट बाइट में, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। राइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि कैशिंग अभी बिल्ड हो रही है। जो हमने एच कैश बनाया था वो बिल्ड हो रहा है। अब इस पेज के लिए सर्वर हमारा इंडिया में है, लेकिन आपको यूके में भी लेटेंसी 200 में मिल रही है, इवन 90 के नीचे जा रही है। सिमिलरली यूएस में अभी कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं हुआ। जब भी कैश बिल्ड होता है, कैश कॉपी होने में थोड़ा टाइम लगता है रेप्लिकेट होने में। इसको हम लोग 2-3 बार हिट करेंगे, उसके बाद तीसरी बार में आपको ये भी दिखना शुरू हो जाएगा। और इंडिया में भी आपको, इंडिया में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे डेटा सेंटर में भी उनका बाहर हो गया है, ये हांगकांग से सर्व हो रहा है मुंबई में, इसलिए थोड़ा लेटेंसी यहाँ बढ़ गया। मैं इसको सेकेंड टाइम हिट करता हूँ। अब आपका कैश कंप्लीटली बिल्ड हो गया है, सारे हिट आ रहे हैं। और अब लेटेंसी आप देखिए, आपका 200 के 100 से भी नीचे आ रहा है, चाहे यूके हो चाहे यूएस हो।
और चाहे इंडिया हो आपका, सब जगह आपका लेटेंसी अब 100 से भी नीचे चला गया। सेम पेज, जो पेज कैश का था, अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग लोकेशंस में क्लाउडफ्लेयर के थ्रू, और ओवरऑल अब कोई भी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको इतने मिली सेकेंड में तुरंत रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये एच कैश का हमें एडवांटेज मिल जाता है। तो ओवरऑल जो बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन इन तीन में ही हो जाता है, ऑब्जेक्ट कैश, पेज कैश और ये एच कैश। तो ये हमारा लास्ट ऑप्टिमाइजेशन था जो हमारे उसमें है। बाकी राइट, अब हम Q&A ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो उसको हम पिक कर सकते हैं। शांतनु, मे बी यू कैन कंटिन्यू। Sure. I think there is one important point as well that we could cover, which is CloudFront. Since Kshitij is a CloudFront customer and he has been hosting his websites on CloudFront. Right. Yeah, maybe you want to talk about it. Sure. I think, yeah. So basically, like Shantu connected with me and I deployed. So I have two blogs, atomstorm.com, protonstorm.com, and I've deployed both of those blogs on this only. So I have deployed it on server, on my DigitalOcean server, and on a single server. This is the smallest size server actually, 1 GB RAM, 1 CPU only. It's $6 per month, I guess. And I have two websites running on this, ProtonStorm and Atomstorm. उसके अलावा स्टेजिंग भी मैं क्लाउडफ्रंट वेबिनार के लिए भी मैंने इसी पे डिप्लॉय किया था वेबसाइट टेस्टिंग के लिए। तो इसमें खास बात है कि सर्वर आप कोई भी इंटीग्रेट कर सकते हो, कस्टम सर्वर भी कर सकते हो, जैसे कोई चीप सर्वर है, और काफ़ी सारे ऑप्शन। मैं डिजिटलोशन प्रेफर करता हूँ, मैं डिजिटलोशन ऐड किया, तो कि ये अच्छा एडवांटेज है, कोई भी क्लाउड, कोई भी सर्वर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। एप्लीकेशन में जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगा, जो सबसे डिफरेंट था, जो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला, वो ये था कि यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्टिमाइजेशंस हैं हमारे पास, जिसमें पेज कैश है, ऑब्जेक्ट कैश के लिए प्लगइन इंस्टॉल किया, वो भी हम डायरेक्ट यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस क्लीनअप के लिए अगर आप प्लगइन डालना है तो यहाँ से वो भी ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट क्लीनअप कर सकते हैं, तो प्लगइन डालने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली जो सबसे अच्छा फीचर मुझे जो दिखा, मैं इसको वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग, मैंने बताया, हम लोग इमेज खुद ही ऑप्टिमाइज करके डालते हैं, तो हम लोग प्लगइन जनरल इमेज की यूज़ नहीं कर रहे वेबसाइट पे, लेकिन वेब पे आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो और कॉम्प्रेशन भी ऑटोमेटिक यहाँ सेटअप कर सकते हो। तो इस सेटिंग में आपका वेब पे चालू है, कोई प्लगइन अलग से डालने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कंटेंट में HTML वेरिफिकेशन, जो भी आप पेज कैश करते हो या एच कैश करते हो, राइट, तो वो HTML को कैश करता है, तो बेटर रहे कि HTML आपका हमेशा छोटा साइज हो। तो वो सब ऑप्शंस भी यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ सर्वर्स में भी थे, सिक्योरिटी वगैरह इसमें ऑप्शंस थे, सर्विस मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करने के ऑप्शंस थे। ऑप्टिमाइजेशन में स्वैप स्पेस मैंने ऐड किया हुआ है 4 GB का, ताकि रैम के इश्यूज ना आए। मैंने नेटवर्किंग ऑप्टिमाइजेशन भी यूज़ किया है, इसका इम्पैक्ट मुझे एज इट इज़ कम्प्लीटली नहीं पता, लेकिन मैंने यूज़ कर रहा हूँ। और क्लाउड, एक और चीज़ है जो मैं क्लाउडफ्लेयर बेसिकली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्लाउडफ्लेयर इंटीग्रेशन आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं क्लाउडफ्लेयर अपना इंटीग्रेट करके यहीं से मैनेज कर रहा हूँ। एटमस्टॉक की जो भी रिकॉर्ड्स मुझे ऐड करने हैं यहीं से ऐड करना है, प्रॉक्सी भी जैसे करना है, जो मैंने भी एच कैश के लिए ऑन किया स्टेजिंग के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती है। इसमें SSL का ऑप्शन आ जाते हैं, स्पीड और कैशिंग, काफ़ी सारे जो प्राइमरी ऑप्शंस दिखते हैं यूज़ करने वाले। मे बी मैं कुछ दिखा दूँ, जैसे वेरिफिकेशन है एच पे या रॉकेट लोडर, मैं यहीं से यूज़ कर ले रहा हूँ क्लाउडफ्लेयर पे, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। एच कैश इसमें ऑलरेडी है, एच कैश में शायद यही यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एच कैश मैंने इसका यूज़ नहीं किया, मैंने शायद प्लगइन से डाला हुआ। एच कैश भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म से मिल जाती हैं, तो इसीलिए, और मैंने डेमो भी इसीलिए इस पर दिया कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी करेक्टली। Right. I think the important point to call out here is that for many of us, काफी लोगों के लिए भी optimizations that Kshitij walked us through today might be hard to grasp, configure, manage, etc. What we are trying to do with CloudFront is that you don't have to do any of these with individual plugins. आपको individual plugins install करके, configure करके ये सारी चीजें करने की जरूरत ना पड़े, और आपके पास एक central console, एक platform रहे जहां से आप
ये सारी चीजें एक ही बार में मैनेज कर सकते हैं एक ही साथ. That's what we are trying to get to with CloudFund. As you saw, कुछ optimizations जो आज भी discuss हुई are already available on the platform, and in the future more will be added. Right. I think we can get to questions. There are two or one main question really, Kshitij, and we only have time for that maybe, which is around security. I think that was a topic that we did not cover today. But if you could briefly touch upon that, कि security के लिए what could people consider? What are the things that they should do? Should they deploy on their, like we discussed earlier, should they deploy on their own cloud infrastructure, and should they choose a better cloud infrastructure? Things like that. So yeah. Right. Around security, actually, security is one big problem in WordPress because we have a lot of plugins. Again, the plugins are the main source of security. If you can stop sharing the screen. Okay. So basically, problem ये है कि like security का भी issue plugin से ही rise होता है. Outdated plugin से आप जितना भी पढ़ोगे, आप WordPress की न्यूज़ पढ़ोगे तो ओल्ड WordPress plugin उसको अपडेट नहीं किया, उससे सिक्योरिटी इशू आ गया. तो प्लगइन अपने में एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज कैरी करता है. वो यही चीज़ है कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज और कोई भी अगर अपडेट नहीं किया तो ब्रेकेज के चांसेस रहते हैं. तो सबसे पहला चीज़ है कि प्लगइन्स आप मिनिमम यूज़ करो, जितना कम यूज़ कर सकते हो, और वो भी आप ऐसे प्लगइन यूज़ करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इग्नोर ही करो. और प्लगइन्स में भी आप वो यूज़ करो जो पॉपुलर हैं, जो एक्टिवली डेवलप हो रहे हैं, जिसको काफ़ी लोग यूज़ करें. कभी भी आप कोई पुराना प्लगइन या ऐसा प्लगइन जो एक्टिवली डेवलप नहीं, कभी यूज़ नहीं करना, नहीं तो 100% चांस रहेगा कि कभी ना कभी हैक होगी वेबसाइट. तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और दूसरा है कि आप काफ़ी सारे वर्डप्रेस के अराउंड भी प्लगइन्स आते हैं, जैसे कि मैंने एटमसॉफ्ट के लिए 2FA के लिए यूज़ किया वर्डफेंस. WP एडमिन वाला जो आपका सेक्शन है, उसमें आप कैप्चर डाल सकते हो ताकि बॉट अटैक वहाँ से बचे. एक ये ऑप्शन आप कर सकते हो. उसके अलावा आप सर्वर, अगेन एक सर्वर भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है कि सर्वर आप जैसे शेयर्ड यूज़ कर रहे हो या VPS यूज़ कर रहे हो या कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो जो ऑलरेडी बड़े क्लाउड प्रोवाइडर हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोई डेडिकेटेड हैकर ग्रुप है, अगर किसी ने टारगेट कर लिया तो इन जनरल पूरा होस्टिंग को ही टारगेट कर लेते हैं उस सेंस में. तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है. शेयर्ड वगैरह तो मेरे अकॉर्डिंग कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना मुझे समझ में आता है. इवन दो उसमें बोलते हैं सेग्रीगेशन, आइसोलेशन, वो यूज़ नहीं करना चाहिए. तो एक होस्टिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैं प्रेफर करता हूँ, और ज़्यादातर मुझे आजकल, मैं बात भी करता हूँ कम्युनिटी में, लोग क्लाउड पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने ही क्लाउड पे डिप्लॉय कर लिया और उसके बाद कुछ प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर लिए, जैसे वर्डफेंस हो गया, सकरी का अपना एक कुछ प्लगइन है. मालवेयर स्कैनर भी बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर देते हैं, तो मे बी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू कीप एवरीथिंग इन चेक, और स्कैन चलता रहे और आप चीज़ें चेक भी करते रहें कि क्या क्या प्रॉब्लम है. अगर कुछ आता है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा दिखता है तो स्कैन करके उसका रिजल्ट भी आ जाए. तो ओवरऑल आप ये चीज़ें कर सकते हैं. सर्वर डिप्लॉय करते हैं तो फेल टू बैन है, फायरवॉल है सर्वर में, तो वो उन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है. तो काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं जो आप सिक्योरिटी प्लगइन्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लगइन्स जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर रहेगा कि आपका हैक नहीं होगा. देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Got it. I think there is a question around what plugins were used for news websites. So we'll be sharing the recording to this session and the presentation with everybody shortly within the next 24 hours. So you should expect them over your email that you had used to register for this webinar. There was also one more point, Kshitij, around Key CDN. I think Rakesh mentioned Key CDN. So have you used Key CDN? Is it a good option that people can explore? Personally, I have not used Key CDN. Key CDN is not free, I guess. I'm not sure. लेकिन क्लाउडफ्लेयर यूज़ किया मैंने. क्लाउडफ्लेयर क्विक क्लाउड यूज़ किया है और मुझे क्लाउडफ्लेयर फ्री है, राइट. फ्री है तो उससे बेटर ऑप्शन नहीं. और क्लाउडफ्लेयर मैंने देखा बहुत सारे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, और मैंने जैसे कि लाइव पे भी रन करके दिखाया आपको कि 40 मिली सेकेंड वो ऑलमोस्ट हर जगह दे देता है. वो ऐसा नहीं कि कुछ थ्रॉटल कर रहा है. क्विक क्लाउड में एक्चुअली थ्रॉटल करते हैं, वो मैं देखा कुछ डेटा सेंटर्स में ही कॉपी करेंगे. क्लाउडफ्लेयर ऐसा नहीं करता है. क्लाउडफ्लेयर लिटरली हर जगह कॉपी कर देता है, तो आपको हर जगह से सेम लेटेंसी आएगा क्विक क्लाउड में, जबकि वो चीज़ फ्री में आपको कुछ ही जगह पे देता है. और बाकी की सॉल्यूशन जो मुझे दिखे, की CDN, बनी CDN मैंने देखा, ये सब पेड है मोस्टली, और मैंने यूज़ नहीं किया है क्वाइट फ्रेंकली. All right, I think we are at time as well. Thanks,
Kshitij, and thanks for the session. Thank you everyone for joining in. As I had mentioned, we'll share the recordings with you. And these webinars will continue to happen. We'll continue to cover different topics around WordPress. So expect emails and WhatsApp messages from us whenever these webinars are happening. And we are looking forward to hosting you in the future as well. Thank you, guys. Thank you, everyone. Bye. The webinar has ended. Thank you for joining. Goodbye.